So we have today's challenge of 200 words. 200 words in our mind, on our tongue, and on our fingertips. Though it is a very difficult kind of challenge, but who knows? Because our standard of excellence that is too high. Our standard of excellence is too high. So keep the upper limit of excellence high so that you always try to struggle to reach to the highest point, to the zenith, to the climax, to the pinnacle, to the summit, to the peak. Can you write these words? Please write a comment that my standard of excellence is the highest point so that I keep on struggling, solving problems, getting happiness. My standard of excellence is very high so that I keep on struggling by solving problems and getting happiness. Because solving problem is one key to happiness, to success. Success is part of happiness. So I hope you got the message. If I'm audible and visible, so please like this video broadcast, share the link in 3 WhatsApp groups and save 2. So we have zenith, summit, peak, summit. All these are pinnacle, means peak, choti. So my standard of excellence is very high, so I keep on struggling by solving problems and getting happiness. Exactly. Thank you. Khwaja Waleed, Rehan Ali, Chaudhry Sikandar. So they wrote today's comment. This is our starter appetizer. You know, appetizer. When you want to eat, so you need appetite. If you are not hungry, so you don't eat. Though hungry is angry, I am doing my research on a topic which is somatic psychology. Please write it, somatic psychology. Somatic psychology means that your body is more important than your mind. Keep your body moving, exercising, dancing, active, dynamic, energetic. So your mind will be automatically fresh and working. Somatic psychology, it's a new science. So when you have challenges, you are solving problems, you are getting happiness because you are solving problems. So never stop problems in your life. If you have no problem, you are dead. So appetizer. Appetizer, a small dish served before a meal. Hors d'oeuvre. Yes. Appetizer. Appetizer means appetite. Appetite means hunger. If you are not hungry, if your body, your stomach is not hungry, you don't enjoy eating. To enjoy eating, you should be hungry.
Though hungry and angry both are interrelated in somatic psychology, that your mind depends on your body, and otherwise we say mind is very important, we are what but what we think. अभी तक जो हमने पढ़ा है वो ये है कि जी सोच बड़ा ज़रूरी है, जहन बड़ा ज़रूरी है, अपने जहन पे काम करो, सोच पे काम करो, ये वो सारा। तो ये एक नया स्टाइल है कि भाई बॉडी को ठीक रखो तो माइंड ऑटोमेटिकली काम करेगा, बिकॉज ब्रेन इज पार्ट ऑफ योर बॉडी, ब्रेन रिसीव्स फूड। तो ये एक नया रिसर्च है कि भाई बॉडी को ठीक रखो। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि पॉपुलेशन, ह्यूज पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा आबादी है, छोटे छोटे घर है, उसमें ना लॉन है, ना गार्डन है, ना पार्क्स है, ना पहाड़ है। लोग क्या करें, कहाँ जाए? तो जब आपकी बॉडी एक्शन में नहीं है, आप सारे दिन बैठे हैं कुर्सी पे, बेड पे, ड्राइंग रूम, टीवी देख रहे हैं हर वक्त, तो ये ऑटोमेटिकली बहुत टेंशन चढ़ता है बंदे को, बहुत टेंशन, क्योंकि बॉडी में हरकत है ही नहीं। तो सोमैटिक साइकोलॉजी जो है ये आपको ये कहता है कि भाई बॉडी को हरकत में ले आओ, डांस करो, रनिंग करो, पहाड़ों पे जाओ, पार्क्स पे जाओ, बागों में जाओ, तो फिर आपका माइंड भी फ्रेश होगा। So this is a concept. I will be sharing my experiences. So now coming back to the topic, which is excellence, topmost excellence. अपना excellence हमेशा बड़ा रखा करें, ताकि आप हमेशा ऐसे रहे कि जी मैं कैसे पहुंचूं, मैं कैसे पहुंचूं। Don't bring yourself to the comfort zone. कंफर्ट में न रहे, हमेशा स्ट्रगल में मज़ा है। तो स्ट्रगल ये है कि भाई 200 अल्फाज हमने सीखने हैं, 200 वर्ड्स, इट्स अ ह्यूज चैलेंज, बहुत बड़ी बात है। 24 घंटों में आपने 200 नए अल्फाज सीखने हैं, 200 वर्ड्स, इट्स अ ह्यूज चैलेंज, कलोसल, मेमोथ, बिग, लेकिन करना पड़ेगा। ये करो भाई, मैंने जी 200 अल्फाज अपने दिमाग में डालने हैं, ठीक है? कम से कम पैसिव इसको कर दो, पैसिव। अगर एक्टिव नहीं कर सकती, कम से कम इसको पैसिव कर दो, अननोन से निकालो। जो हमारा विकेबलरी फार्मूला है यूपा, UPA, यूपा मीन्स अननोन, पैसिव, एक्टिव। 3 stages of the vocabulary building. Please write it once again. 3 stages of vocabulary building. So what you are basically doing, that is your limit. Now thank you Khwaja Waleed for your contribution. So vocabulary building formula is, vocabulary building stage is UPA, UPA, unknown, passive एंड एक्टिव। ये 3 स्टेजेस है। आप एक लफ्ज़ को देखते हैं, आपके सामने आता है यार ये तो मुझे नहीं आता, क्या है? तो ये स्टेज क्या है? अननोन, नहीं आता। तो फिर उसको पैसिव बनाओ, मतलब उसकी मीनिंग देखो, यूज़ देखो, नज़र से गुजारो, सेंसरी डेटा, दिमाग पे एक नक्श बनाओ इस लफ्ज़ का कि यार ये लफ्ज़ भी कोई है, अंग्रेज़ी में ये लफ्ज़ भी है, तो ये पैसिव हो गया। एंड देन एक्टिव। एक्टिव है कि व्हेन यू स्पीक एंड यू राइट यू यूज इट। सो एटलीस्ट पैसिव। कोई और बंदे इसको यूज करेगा तो कम से कम आपको पता हो, खुद यूज करोगे तो क्या बात है, क्योंकि किसी दूसरे बंदे पे आपका इख्तियार नहीं है। आप अखबार वाले को नहीं कह सकते जी मेरी मर्जी के अल्फाज लिखो। प्रेसी में, कंपोजिशन में, एसे में, टॉपिक्स में आपकी मर्जी नहीं है कि जी मुझे जो अल्फाज आते हैं वो लिखो, वो उसकी अपनी मर्जी है।
So active vocabulary is for writing and speaking. Passive vocabulary is for reading and listening. अभी तो टीचिंग है, तो टीचिंग जो है वो तो और बात है. अब मैं टीचिंग कर रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं कि जो लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल जाए उसको मैं एक्सप्लेन भी करूं. लेकिन आर्टिकल्स में, बुक्स में, प्रेसी में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में उस बंदे का मकसद ये नहीं होता कि आपको समझाए. वो तो लिखता है या बोलता है, तो वो आपको नहीं देखते. फिर वो करोड़ों लोग होते हैं, तो किस किस को समझाएगा. सो आर यू रेडी टू बिल्ड योर 100 वर्ड्स and 100 adjectives? Because adjectives beautify, adorn, embellish your language. अभी अल्फाज मुझ पे वैसे आते हैं, मैंने कोई तैयारी नहीं की है इन अल्फाज की. adorn, embellish, beautify. So these are synonyms. Embellish, beautify, adorn, decorate. These are synonyms. खूबसूरत बनाना, एक चीज को खूबसूरत बनाना. So what word we use? Beautify, adorn. चौधरी सिकंदर, adorn, ADORN. इसलिए मैं कहता हूं आप लोग लिखा करें. आप लिखते हो तो मुझे नजर आता है, नहीं लिखते तो मुझे क्या नजर आएगा. Adore means worship. When you like something too much, that is called adore. ADORE. Adorable beauty. Adorable beauty. So adorn, decorate, beautify, embellish. EMBE. डरो मत कि यार ये मुझे embellish का स्पेलिंग नहीं है तो कोई गलत ना हो जाओ. लिखो, गलत लिखो, मैं उसको ठीक करूंगा. embellish. ये क्लास है. ये जो है ये क्या है? क्लास है. क्लास में गलतियां होती है. सो EMBELLISH. embellish. ना प्रेज तो फिर तारीफ करना है ना, और चीजें. चीज को खूबसूरत बनाना, ब्यूटिफाई. अभी एडजेक्टिव्स में भी आपको थोड़ा सा इसमें फर्क होता है. अब ये नहीं कि हर लफ्ज के लिए आप एक जैसे यूज करोगे. सो एम्बेलिश, टू एम्बेलिश, एडोर्न, डेकोरेट, ब्यूटिफाई योर लैंग्वेज, यू नीड एडजेक्टिव्स. अच्छा, याद रखिए कि आपने एक पैराग्राफ में एक या दो खूबसूरत एडजेक्टिव्स डालने हैं. ये नहीं कि पूरा बमबारी करे उधर, वो भी बुरा लगता है. मतलब एक पैराग्राफ में एक ईडियम, एक एडजेक्टिव, खूबसूरत सा एडजेक्टिव बहुत है. एक प्रोवर्ब, एक कोटेशन, मतलब बहुत ज़्यादा. हमारी मुसीबत यह है कि पाकिस्तानी लोग जो है वो एक्सट्रीमिस्ट है, एक के पीछे पड़ जाते हैं बस. तो पीछे मत पड़े चीज़ों की. मतलब एक एडजेक्टिव डालो बहुत है. एडजेक्टिव का मतलब यह है कि कोई नई चीज़ डालो. मसलन Arcadian. Anybody can tell me what is Arcadian? Can you tell me Arcadian? What is the meaning of Arcadian? ये 100 एडजेक्टिव्स के मैंने आपको लिस्ट दिए हैं. तमाम एडजेक्टिव जरूरी है. उसमें से आप किसी भी एडजेक्टिव को छोड़ नहीं सकते. सो चौधरी सिकंदर, यू हैव टू राइट द वर्ड एंड द मीनिंग एज रमशा खान हैज रिटन. आपने फौरन जंप नहीं लगाना. तो रमशा ने मेरे ख्याल में पहले दफा एक मार्क ले लिया. सो रमशा खान गॉट 1 mark. First time competitor, I think, as far as I remember. तो Arcadian means serene,
ट्रैंक्विल, पीसफुल, क्लासिक। ठीक है, एक चीज़ बड़ी प्यारी सी, पुरसकून। सो दैट इज कॉल्ड आर्केडियन। अच्छा, ये जो वर्ड हंटिंग है, वर्ड हंटिंग या लैंग्वेज वॉचिंग, इट्स अ हॉबी। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, इसने तो मेरी नींद ही हराम की थी। मैं मतलब 10-10, 12-12 घंटे पड़ा रहता था लफ्ज़ों के पीछे। तो ये जो है बड़ी खूबसूरत हॉबी है, आर्केडियन। ट्रैंक्विल, सीरीन, पीसफुल, क्लासिक, मज़ेदार किस्म की चीज़, आर्केडियन। लेकिन इसकी और भी कहानी है आर्केडियन की, अब टाइम नहीं है। तो क्लास के बाद जो है जाके डिक्शनरी में आर्केडियन पूरा पढ़ो कि क्या चीज़ है। अब मीना गुलाले को कोई क्या समझाए, मैं चाय पी लेता हूँ। मैंने फजूल किस्म की गलतियाँ लोग करते हैं ना। अब इसमें एच डालने की क्या ज़रूरत थी? जब एक इसके स्पेलिंग में एच है ही नहीं, ये खुद ही डाल लेती है। तो आर्केडियन में एच नहीं है, आर्केडियन, ARCADIAN, आर्केडियन। मतलब फजूल किस्म की गलतियां मत करे। जिस गलती की जरूरत नहीं है उसको क्यों करते हो? ओके, नेक्स्ट वर्ड इज limpid. Limpid, it's a beautiful adjective, limpid. Keyboard should be in your control. You should not be controlled by keyboard. ये नया कोटेशन बन गया। ये कीबोर्ड क्या चीज़ है? मुर्दा चीज़ है, वो आपको क्यों कंट्रोल करता है? वर्ड एंड मीनिंग टुगेदर, सुभानुल्लाह साहब। वर्ड एंड मीनिंग टुगेदर। मीना गुलाब की स्पेलिंग्स तबाही है, तुम खामखा की गलती करते हो। LIMPID, लिम्पिड। तो ये मैं द मार्क्स गोज टू चौधरी सिकंदर। I saw his comment first. आर्केडियन, सीरीन। अभी एक कहानी है, सीरीन, सेरेनिटी। तो इस तरह लिम्पिड, लिम्पिडिटी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिंपल, क्लियर, ट्रांसपेरेंट, दैट इज कॉल्ड लिम्पिड। लिम्पिड, क्लियर, transparent. Limpid explanation. One of my favorite and the secret of my success. One of the secret, I have so many secrets, but one of the secret of my success is this word. So let me see who tell me the meaning of this word. Tenacious. Tenacious. I adore this word. Love. Tenacious. Can you write the spelling and the meaning? All these words are from the 100 adjectives list I have already given you. Word and meaning together. Tenacious. I adore this word. I love it. This is the secret of my life. Tenacious, tenacity, tenaciously. So this mark goes to Meena Gulalai. Tenacious. It's such a beautiful word.
if you go into details of tenacity, I like people who are tenacious. My hobby, I find people who are tenacious. Tenacious means persistent, cohesive, solid. I don't like scattered people, scattered, unstable. पल में तोला, पल में माशा. Oh sir, I love you, sir, sir जी. और कल परसों गायब. तो इन लोगों में टेनेसिटी नहीं होती. ये सॉलिड लोग नहीं हैं, भी बस फसली बटेरे. टाइम के साथ इब्नुल वक्त ऐसे जज्बाती बातें करके खुद भी भूल जाते कि हमने क्या कहा था. जो टेनेशियस लोग होते हैं, दे आर कोहेसिव, कोहिजन. ठीक है, वो ऐसे मतलब लगे होते हैं, बस बिल्कुल लगे होते हैं, बिल्कुल अपने मकसद के साथ, बंदे के साथ. आपने कोई बात की, मैंने उस दिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको टॉपिक दिया था मेरे टाइम लाइन पे, कॉग्निटिव डिसोनेंस. प्लीज राइट दिस, कॉग्निटिव डिसोनेंस. टेनेशियस लोगों को कॉग्निटिव डिसोनेंस नहीं होता. जो है वही है. जी में 5 रुपए, जी मेरे पास 5 रुपए है. 50,000 है, कह रहे मेरे पास 50,000 है. इनके कौल व फ़ेल में तजाद नहीं होता. जो कहते हैं वो करते हैं. सो दैट इज टेनेशियस. कॉग्निटिव डिसोनेंस ये एक बीमारी है दिमाग की, कि जब आपके दिमाग में क्लेश है, क्लेश. कॉग्निटिव डिसोनेंस, क्लेश इन योर थॉट्स. करूं ना करूं, ठीक है कि गलत है. स्मोकिंग करते हो, पता है कि गलत चीज़ है, फिर भी करते हो. मतलब आप इस चीज़ पे कन्विंस है कि ये स्मोकिंग जो है ये गलत बात है. नहीं, कैसे मैनिपुलेटेड शाकिर जैदी. वो है टेनेशियस बंदा, वो तो सॉलिड है, रॉक है. किसी माई का लाल कोई बाप उसको मैनिपुलेट कर सकता है. वो स्टूपिड तो नहीं होता. ये बंदा स्टूपिड नहीं है, लोगों की बातों में नहीं आता, न किसी और को बातों में लाता है. सो दैट इज टेनेशियस. कोहेसिव, कोहेसिव का मतलब जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ. कोहिजन, कोहेसिवली, consistent, persistent, perseverant. बिल्कुल पक्का मुस्तकिल मिजाज. tenacious. Okay, so this went to Meena Gulalai, Sikandar 1 mark, and Ramsha 1 mark. Now the next word is verdant, with V, verdant. I also like it. My another aesthetical weakness, Jamaliyati kamzuri, verdant. Spelling and meaning. So Farhanda got this mark. Green, unripe, green, verdant gardens. Verdant, green color I like because this is the color of nature. Trees and plants and herbs and shrubs. Verdant. Okay, the next word is again my favorite word. I love it. Salubrious. Salubrious.
Can you write the word and the meaning? Salubrious. 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 हेल्दी टेस्टी। ये फरखंदा जो है ना क्या कर रही है, नकल मार रही हो या सही कह रहे हो? फरखंदा गॉट सेकंड मार्क। हेल्थफुल, नॉट हेल्दी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड हेल्थफुल। सैल्यूबरस फूड, ऐसा खाना जो आपको हेल्थ देता हो। आई एम हेल्दी बिकॉज ऑफ हेल्थफुल फूड। दैट इज हेल्थफुल, नॉट हेल्दी। हेल्दी और हेल्थफुल में फर्क है। सो फरखंदा गॉट द सेकंड मार्क. So we have done so far adjectives: Arcadian, limpid, tenacious, verdant, salubrious. Healthful, Zara Ishfaq. Healthful, not healthy. Okay, next word a little complicated. Ruminate. Sorry, ruminative. Because these are adjectives, not verbs. Ruminative. And somebody should write the words that we are doing, making a list, updating the list that we are learning. We learned Arcadian, limpid, tenacious, verdant, salubrious. Now ruminative. 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 So this mark goes to Asadullah. Asadullah is the name? Yes, Asad. Asad got the answer correct. The first comment that I saw. Ruminative means contemplative, meditative, thoughtful, pensive. All these are adjectives. अब हुमा खान हमारा टॉपिक क्या है? एडजेक्टिव्स. रूमिनेटिव जो है, इसके लिए एडजेक्टिव क्या होगा? थॉटफुल. डीप थॉट जो है वो क्या है? नाउन है. एडजेक्टिव और नाउन, डीप थॉट. तो रूमिनेटिव का आपने जवाब क्या देना होगा? कॉन्टेम्पलेटिव. कॉन्टेम्पलेटिव, pensive, thoughtful, meditative. So ruminative, contemplative, meditative, thoughtful. सोच विचार में गुम, जो बंदा सोच करता रहता है, contemplative. Life is action, not contemplation. It's a famous quotation. Life is action, not contemplation. कुछ लोग ऐसे मूर्ख बना के हर वक्त सोचते रहते हैं जी, हाँ जी क्या होगा तो ये होगा तो वो होगा. छोड़ो, आ जाओ, एक्शन. एक्शन करो. Life is action, not contemplation. Though contemplation is important, soch, we have to think, but action is important. Some people, they go for overthinking. उनको थिंकिंग में मजा आता है बस.
तो थिंकिंग जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग प्लानिंग के हद तक ठीक है। आपने प्लान करना जी, कल मैंने क्या क्या करना है, मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, बस फिर सो जाओ, स्लीप। एक्शन इज इंपॉर्टेंट, एक्शन करो, हमेशा एक्शन में रहो। थिंकिंग शिंकिंग फजूल चीज़ है। जब तक आप कोई फिलासफर नहीं है, कोई राइटर नहीं है, मेरे जैसा जो है आप लोग खामखा पूरी दुनिया का ठेका अगर आप लोगों ने नहीं उठाया। मैं तो सोच करता हूँ, लिखता हूँ, मेरा तो काम यही है। यू हैव टू एक्ट। एक्ट का मतलब क्या है? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, वॉकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग। एक्शन में ज़्यादा रहो। ये सोमेटिक साइकोलॉजी आपको कहती है कि भाई एक्शन में रहो, छोड़ो ये सोच विचार। सो दैट इज व्हाट रूमिनेटिव। बेसिकली रूमिनेट जो है, रूमिनेट ये जो वर्ब है रूमिनेट, ये गाय जब वो लेती है, क्या कहते हैं उसको, जगाली करती है, या भैंस ऐसे, तो उसको कहते हैं रूमिनेट। रूमिनेटिव, कॉन्टेम्पलेटिव, थॉटफुल, पेंसिव। So who got this mark? Asad. So somebody can make the list of the words that we have done so far. Arcadian, limpid, tenacious, verdant, salubrious, ruminative. Okay, the next word that we have, that is querulous. 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 Ruminant. Yeah, there are some animals who are ruminants. हम देखें ये भैंस या गाय जो है पता नहीं किसी सोच में गई है। Ruminant. So the next word is querulous. Adjective. Can you write? Zartasha Khan, thank you. Arcadian, limpid, tenacious, verdant, salubrious, ruminative. Now write querulous. Querulous. कुछ लोग एडियम तैयार करके आए हैं लेकिन वो एडजेक्टिव्स में फंस गए। एडजेक्टिव भी हमारा मेन वोकैबुलरी है। ये वीक जो है, ये एडजेक्टिव्स का वीक है। क्वेरुलस। हाँ शाकिर जैद, आपने वैसे अंदाजा लगाया क्वर्ल से, लेकिन रेहान अली ने जो सही नाम दिया, रेहान। Querulous. I don't like querulous people. Querulous means cranky. Cranky means whining, complaining. हर वक्त हो जी नहीं हो रहा, तो किधर है, तो ये है, तो वो है, तो सेब में क्या है, तो मुझे तो कुछ नहीं आता, तो ये है, तो क्या है यार, छोड़ो, गोली मारो, ये सिस्टम हमारा खराब है। हर वक्त फरियादी, दूसरों पे मलबा डालने वाला, फजूल किस्म का, हर वक्त जो है ब्लेम गेम खेलने वाला। ब्लेम गेम, ब्लेम गेम, अपने आप से मलबा हटा के दूसरों पे फेंकना। सो दैट पर्सन इज कॉल्ड क्रैंकी, पेट्यूलेंट आल्सो, यस अनस खान। कंप्लेनिंग, वाइनिंग, WHING, वाइनिंग, हर वक्त बस रोता हुआ, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, बस रोने, हर वक्त रोता रहता है। क्वेरुलस। हाँ, these are negative adjectives. Negative. Some are positive adjectives like tenacious, limpid, Arcadian, salubrious. Ruminative दरमियान दरमियान की है, न बहुत नेगेटिव है न बहुत पॉजिटिव है। एडजेक्टिव में आपने देखना होगा कि ये अच्छी पर्पस के लिए है या गलत पर्पस के लिए है। अब एक और नेगेटिव एडजेक्टिव आ रहा है, मेरिट्रिशियस। मेरिट्रिशियस। Thank you, Ramsha Khan, for updating the list. Now the next one is meretricious.
मेरिट्रीशियस। अब ये लगता पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव वर्ड है। मेरिट्रीशियस, व्हाट डज इट मीन मेरिट्रीशियस? क्या बात है जी। अब अगर नकल नहीं लोग मार रहे तो मैं क्या करूँ, अब मुझे मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो असदुल्लाह गॉट दिस मार्क, सेकंड मार्क। सो देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन फरखंदा एंड असद। बाकी तो पता नहीं किधर गायब हो गए, उनका गर्द नजर आ रहा है, डस्ट इज विजिबल, दे आर गॉन। तो मेरिट्रीशियस मीन्स वोरिश। वोरिश मीन्स सुपरफिशियली अपीलिंग। प्रेटेंशियस, क्या खूबसूरत एडजेक्टिव्स है। ये जिस बंदे ने ये लिंक बनाया है, मैं तो आई एम सो हैप्पी। मतलब उसकी मीनिंग जो है वो एडजेक्टिव से ज्यादा प्यारे है। मेरिट्रीशियस, वोरिश, सुपरफिशियली अपीलिंग, प्रेटेंशियस, pretentious, worish, wor means prostitute, तवाइफ। अब तवाइफ के पास जाते, तवाइफ जी, हाँ जी तवाइफ जी, वो कहते जी वाह जी, स्माइलिंग, हाँ जी, मेकअप शेकअप सारा, कपड़े शपड़े ज़बरदस्त जी, हाँ जी बिल्कुल जी, हम तो खादिम है, हाँ सारा। लेकिन ये सारा क्या होता है, ड्रामा होता है पैसों के लिए, हकीकत नहीं होती। तो इस तरह की चीज़ को क्या कहते हैं, मेरिट्रीशियस, वोरिश। वोर, WHORE, वोर मीन्स प्रॉस्टिट्यूट, तवाइफ। सुपरफिशियली अपीलिंग, सुपरफिशियली अपीलिंग, सतही तौर पर एक चीज जब अट्रैक्टिव होती है, दिल से नहीं। आपको लगता है कि ये तो बस मेरे 50 सालों की जानने वाली है, तो दैट इज कॉल्ड प्रेटेंशियस। ख्वाजा वलीद टॉपिक पिक करो, ज्यादा तबसरे मत करो, कोई जवाब दो। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज इंसिडियस। इंसिडियस, ख्वाजा वलीद यूर टर्न। इंसिडियस, दिमाग को इधर ले आओ, ये विकेबलरी बिल्डिंग है। मैं मिर्च मिसालें इसलिए लगाता हूं कि आपको याद रहे। इंसिडियस, तो आज जो है फॉर्म में कौन है, असदुल्लाह है। गुड, करेक्ट। इंसिडियस मीन्स सटल, सटल। अब जो मुझे फॉलो करते हैं, कहाँ देखा है उन्होंने आज सटल, मैंने एक जगह यूज किया है मेरे टाइम लाइन पे, सटल, सेडक्टिव, ट्रेकेरस। सटल, सेडक्टिव, ट्रेकेरस, इंसिडियस। ये तमाम एडजेक्टिव जो है आपकी लिस्ट में मौजूद है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। अगर किसी में कोई गैरत आई है या जहालत है तो वो जाके क्लास के बाद उस लिंक को पढ़े। इंसिडियस, इंसिडियस मीन्स सटल, सेडक्टिव, यस असद, सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बुक। एग्जैक्टली, इस पे आज मैंने इस बुक को रिकमेंड किया अपने टाइम लाइन पे, तो वहां ये सटल का वर्ड है, बी इसमें साइलेंट है। सटल, सटल, सेडक्टिव, ट्रेकेरस, इंसिडियस। अभी मीना गुलाले को जो है ना कोई बीमारी है, खामखा स्पेलिंग को गलत लिखती है। इंसिडियस एस के साथ है, सी के साथ नहीं है। नाजक
तरीके से धोखा देने वाला, ऐसे कोई आराम आराम से, दैट इज कॉल्ड इनसिडियस, सेडक्टिव। सेडक्टिव ये होता है सेडक्शन, कि आपको कहता नहीं है लेकिन कोई लेप सेप लगाते हैं, कोई बाल शाल ठीक करके, ये वो सारा कहानी। तो अब ये कहते हैं कि दैट इज सेडक्टिव, आपको अपनी तरफ अपील करने वाला। नाउ आई डोंट नो व्हाई बट वर्ड्स रिटन बाय स्टूडेंट्स आर सीन प्रायर टू द मोमेंट सर वर्बलाइज इट। हाँ, सो यू डू इट द सेम। आपको किसने रोका है? करो, वो करते हैं तुम भी करो। हमने तो मुकाबला कराना है और लर्निंग करना है। मुझे कभी कभी पता चलता है कि बंदे ने कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन लर्निंग है, ये कोई मुकाबला नहीं है। मुझे कल याद नहीं कि किसने जीता था, कौन मेरा हीरो है, कौन मेरा जीरो है, इन चक्कर में मैं नहीं पढ़ता। ये तो एक बहाना है करने का। जो और लोग कर रहे हैं आप भी करो, कुड़ने की जरूरत नहीं है, एक्शन। ओके, हिस्ट्रियनिक। हिस्ट्रियनिक इट इज नेट इशू, नॉट अ नेट इशू। आ नेट नहीं होता, नीलम अकबर। ए आ एन दा, ये भी हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स में, हर जगह इसको मत घुसाओ। हिस्ट्रियनिक मीनिंग तो फरखंदा ज़ैब ने भी जो है ना वो इधर से इफेक्टेड, थिएट्रिकल, ये मेरिट्रीशियस की तरह है, ये थिएटर, ड्रामा करने वाला, ड्रामाबाज, हिस्ट्रियनिक। तो ये बहुत से अल्फाज है, बट द टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। कुछ अल्फाज मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ, इसको लिखे। कंपटीशन इज ओवर, बिग हैंड फॉर असद। असद टुडे ही डिड वेरी वेल, एक्सेलेंट, इर्कसम, कैन यू राइट व्हेन आई एम स्पीकिंग? जो आप कैच कर सकते हैं उसको वहां लिख के, इर्कसम, रेडोलेंट, टर्जिड, रेडामेंथाइन, मोरडेंट। आप इसमें से किस किस को कैच कर सकते हैं, लिखा करिए उधर। मोरडेंट, रेडामेंथाइन, टर्जिड, रेडोलेंट, इर्कसम, गाइलेस, फीकंड, एंडेमिक, वालुबल, VOLUBLE। तो ये कुछ और अल्फाज थे, सो यू शुड गो फॉर दैट। 24 आवर्स आप लोगों का ये चैलेंज है। मंथली एग्जाम से पहले आपने इस ग्रुप में तमाम ईडियम्स, वोकैबुलरी को रट्टा लगा के पक्का करना है, टेनेशियसली। Now, who will tell me that what is the meaning of the idiom break a leg? Break a leg. Valuable with O, not valuable. ईजा खान, इतना आसान मैं आपको नहीं कहूँगा। वोकैबुलरी में हमेशा अल्फाज मुश्किल होंगे। Okay, now idioms. Break a leg. Fecund, ये मीना गुलाले को बिल्कुल कोई चक्कर है। FEECUND, ये हमेशा जो है लफ्ज को गड़बड़ कर लेती है। FECUND। इडियम प्लस मीनिंग, सिर्फ मीनिंग नहीं। ज़ारा इशफाक, CUND। गुड लच क्या होता है? रमशा खान ने पहले ही जवाब देती है, बाकी गायब हो जाती है। ब्रेक अलेक मीन्स गुड लक। रमशा,
Correct. Idiom plus meaning. Break a leg means good luck. Tomorrow is your weekly exam. Break a leg means good luck. Okay, next. ये भी leg वाला है. Cost an arm and leg. Cost an arm and leg. मुझे गुड लक की जरूरत नहीं है मंजूर मुगल साहब, मैं ऑलरेडी लकी हूं, अपने फिक्र करो. जवाब दो. नेक्स्ट. कॉस्ट एन आर्म एंड लेग. Cost an arm and leg. Ramsha got the second mark. Excellent. Pay high cost. Expensive. Correct. So the first I saw of Ramsha. Okay. Next one is draw a long bow. Draw a long bow. Write the idiom and the meaning together. Draw a long bow. लाई तो नहीं है. लाई जरताशा खान. तो एग्जाजरेट. लाई भी है, एग्जाजरेट. ये उस पर लिखा होगा, मैं तो अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन ड्रॉ अ लॉन्ग बो जो है बेसिकली एग्जाजरेट, फैंटासाइज, कौस कज़ा बनाना, शफक और उफक पे रंग बखेरना. हाँ जी, वो मेरे एक स्टूडेंट होती थी तो हमेशा कहती थी सर हम सीए से जाएंगे तो कौन से कपड़े पहनेंगे. हमेशा यही उसका होता था. ड्रॉ अ लॉन्ग बो. वो तमाम पेपरों में फेल हो गई. तो कुछ लोग जो है वो फैंटेसीज. ड्रॉ अ लॉन्ग बो. तो किसको दे दो ये नंबर. So let me give this mark to Zartasha. It is also kind of lie. So Zartasha got 1 mark. So draw a long bow means बड़े बड़े छोड़ना. Next word is eat like a bird. Eat like a bird. परिंदे की तरह खाना. Eat like a bird. ये जो मैंने आपको एडजेक्टिव्स दिए हैं और ईडियम्स दिए हैं, ये 200, ये बहुत ज़रूरी है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट है ये. इसमें से आप किसी भी ईडियम को नहीं छोड़ सकते. सो लेट मी गिव दिस मार्क टू रामशा खान. करेक्ट. So Ramsha got 3 marks, Zartasha got 1 mark. Let's continue. Find your feet. Find your feet. Find your feet.
Find your feet. हाँ, तो नीलम अकबर CSS story to make yourself familiarized. Find solution. Become confident. अब ये सारे ठीक है, बट द मार्क गोज टू नीलम अकबर, क्योंकि उसने पहले लिखा है नीलम. 1 mark. Find your feet means I was so confused and safe, but now I am finding my feet. For me, CSS was very complicated, but now I found my feet means that I am now stable. I got stability. I am no more shaky. I am confident. I get myself familiarized with the basics. So that is find your feet. So far we have done break a leg, cast an arm and leg, draw a long bow, eat like a bird, find your feet. Can you make a list of these idioms before I go to the next? कौन कौन से हमने सीखे अभी तक? Break a leg, cast an arm and leg, draw a long bow, eat like a bird, find your feet. CSS is not a rocket science, but because now I have found, F-O-U-N-D, Sayyid Sajid Ali. I have found. ये मुसीबत है, अच्छा काम करते हो कोई और गलती कर लेते हो, मेंढकों का तोल है. ग्रामर ठीक हो जाता है तो वोकैबुलरी का मसला होता है. हर जगह आपको लड़ना होगा. यू हैव टू फाइट ऑन ऑल द fronts. Okay, next, 40 winks. 40 winks. Hurry up, time is almost over. 40 winks. So almost all of you are giving correct answer, but the answer that I saw first, that is Zartasha. So Zartasha got the 2nd mark, Ramsha 3 marks, Zartasha 2, Neelam 1. So 40 winks means nap, N-A-P. थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लेना. 40 winks. केलोला, मामूली सी सो जाना कुछ मिनट्स के लिए. It's a beautiful idiom. This one I like it. Go cold turkey. Go cold turkey. Go cold turkey. Go cold turkey. Hardened. Abandon addiction. To suddenly stop some bad habit. अब इसमें जो 100% करेक्ट आंसर है दैट इज अब जरताशा खान. रमशा खान का भी ठीक है. abandon addiction, go cold turkey, quit. Quit what? Quit bad habits.
चौधरी सिकंदर। हर चीज़ छोड़ना नहीं। अभी क्लास को आप छोड़ते हैं या CSS को छोड़ते हैं तो वो गो कोल्ड टर्की नहीं है। Abandoning, quitting, leaving bad habits. So the mark goes to Zartasha Khan. So now it's a tough competition between Ramsha and Zartasha. Both 3 marks. Go cold turkey means stop bad habits. गलत आदत छोड़ना। And usually suddenly अचानक जी बस मैंने स्मोकिंग छोड़ दी, मैंने टाइम वेस्ट छोड़ दिया, मैंने सोशल मीडिया छोड़ दिया, खत्म। आई वेंट कोल्ड टर्की, स्टॉप। क्योंकि कोल्ड टर्की जो है मतलब सड़ा हुआ या ठंडा चिकन या टर्की कौन खाएगा? मतलब वो चीज़ें आपको इतनी बुरी लगती है। फिर हर ईडियम के पीछे एक कहानी होती है। Asadullah, I saw it first here. For me, all are just students. I don't see who is what. Maybe internet issue. तो जब भी आपको बुरा आदत है आपका, remember this idiom. Go cold turkey. मतलब कि एक ठंडा मुर्गी आपको कोई दे दीजिए, खा लो। अरे नहीं। तो इस तरह बुरे आदत जो है वो कोल्ड टर्की की तरह होते हैं। टर्की का मतलब है वो खास किस्म की जो मुर्गा होता है, टर्की। कीप योर चिन अप, कीप योर चिन अप। Anybody? Keep your chin up. Keep your chin up, brave. Now I saw Ramsha Khan first. Keep your chin up, brave. Be brave. लेकिन मार्क किसको जाना चाहिए? असदुल्लाह को, कि इसने असद गॉट द मार्क बिकॉज बी ब्रेव। ब्रेव नहीं, बी ब्रेव, बहादुर बनना। बिकॉज ब्रेव इज एडजेक्टिव, बी ब्रेव इज वर्ब। सो कीप योर चिन अप मीन्स बी ब्रेव, बी कॉन्फिडेंट, फेस योर प्रॉब्लम्स। Lose your marbles. Lose your marbles. ख्वाजा वलीद आपने नहीं पढ़ा, you did not read the list. अपने तरफ से मत बनाओ। ईडियम का एग्जैक्ट मीनिंग आपको आना चाहिए। Lose your marbles. So Neelam, I saw the answer correct. Go crazy. Ramsha Khan, lose, L-O-S-E, not L-O-O-S-E. Lose your marble means to go insane, पागल हो जाना। I love this idiom. Love, adorable. Wow. Can you imagine which idiom is coming? Which idiom is coming? Imagine. On cloud 9. On cloud 9. Lovely idiom. Hurry up, time is over.
ऑन क्लाउड 9. यार मुसीबत बना लिया तुमने नीलम. करेक्ट. So now Ramsha, Zartasha, Neelam, all of them got 3 marks. Asad 1. So on cloud 9 means उड़ना, very happy, extremely happy. बहुत खुश होना, हवाओं में उड़ना, बादलों पे जाना. On cloud 9. Okay, quickly please, time is already over. To go Dutch. Quick. Go Dutch. To go Dutch. Hurry up. I am today on cloud 9 because students are participating actively and meaningfully. To go Dutch. Zartasha. 4 marks. करेक्ट. जब हर बंदा अपना अपना पैसे देता है रेस्टोरेंट वगैरह में, सो दैट इज टू गो डच. ओके. बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड. Best things since sliced bread. Best thing since sliced bread. Turning point. जो भी सही जवाब देगा जीतेगा. Neelam again, problem 4. Correct. The best invention, मतलब रोटी के बाद जो है बेहतरीन कोई नई चीज़ बनाना. Best thing since sliced bread. Okay. Drastic times call for drastic measures. Drastic times call for drastic measures. Thank you very much for your participation. It was a very important class. The target for coming 24 hours is 200 words, 100 idioms and 100 adjectives. Drastic times call for drastic measures. That is the last idiom. I appreciate participation of Ramsha, Zartasha, Neelam and Asad. Their answers were correct. And Neelam got call for desperate steps to be taken. Exactly. So CSS, and now we are going to PMS classroom. Drastic times call for drastic measures. So Neelam got this competition. Congratulations, excellent, very good. And all other people must go cold turkey. They should not go for 40 wanks. And they should find their feet. Don't eat like a bird. Don't draw a long bow. Break a leg in PMS classroom. Everybody should go to PMS classroom where we will be doing very important MCQs which are important for your future careers. Everybody should be on cloud 9. Don't bark up the wrong tree. This was another idiom which I couldn't ask. Curiosity killed the cat. Best thing since sliced bread. Drastic times call for drastic measures. जब आग लगी है तो फिर तेज हो जाओ. कंपटीशन है, मुकाबला है, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है.